بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج ماحول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے، جب کبھی صحابہ کرام کو کسی خاص بات کے لیے جمع کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال کو بلاتے اور انہیں اذان دینے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو صحابہ کرام اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ایک معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاش پشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک نے ممبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے فرمایا، جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بلند آواز سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنی اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی جانب ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کی رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرح سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تو دوسری طرف سے اس طرح بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملاک کچھ دیر تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بغور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ خود ملا بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کی سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کشتی کی سمت روا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ جو ہی خوف و دہشت کے عالم میں رات بیت اور صبح ہوتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بعد کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی۔ اب صبح ہونے پر بھی سمندری موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کرتی کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن بعد سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کوئی درخت سمندر میں کھڑے ہیں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی امید بن گئے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی مثال تھی۔
कश्ती के मुसाफिर जो मौत की उम्मीद कर बैठे थे, उनके चेहरों पर अब जिंदगी की मुसर्रतें दौड़ रही थी। कश्ती और करीब हुई तो दरख्त वाज़िया दिखाई देने लगे। सूर्य गुरूब होने के करीब था और मिलाद 3 दिनों में मिलने वाला पहला मौका खोना नहीं चाहता था। उसे डर था कि अगर रात हो गई तो इस हिम्मत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ बढ़ती रही। दरख्त और करीब हुए तो मुसाफिरों को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये समंदर में कोई जजीरा है। मिला की मेहनत बाहर आई और अभी सूरज मुकम्मल गुरूब ना हुआ था। कश्ती जजीरे के करीब पहुंची। सब मुसाफिरों ने जजीरे पर कदम रखते ही सुख का सांस लिया। 3 दिन तक वो जिंदगी और मौत की कशमकश में रही थी और अब मौत का खौफ कुछ कम हुआ तो उनको राहत और सुकून के कुछ लम्हात मुयस्सर आ गए थे। इसी खुशी में इस पुरस्कार जजीरे को देख रहे थे। उधर सूर्य गुरूब हो रहा था और अंधेरा छा रहा था। तारीकी जा रही थी। गुरूब होते सूरज ने उन्हें मगरब और मशरक की सीमतों की पहचान करवा दी थी, लेकिन उन्हें ये खबर न थी कि वो किस जगह पर मौजूद है। मुसाफिरों को जजीरे पर उतरे अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान से एक अजीबोगरीब किस्म का जानवर नमूदार हुआ। जानवर के पूरे जिस्म पर बाल ही बाल उगे हुए थे। बाल इस कदर लंबे और घने थे, ये मालूम ही ना होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर पुरस्कार जजीरे पर इस अजीबो गरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए। एक मुसाफिर ने तअज्जुब से देखते हुए दूसरे मुसाफिर से पूछा, जो खुद भी हैरानगी में डूबा हुआ था, क्या हाय अफसोस, ये क्या बला है? जानवर ने मुसाफिर की बात सुन ली थी। मुसाफिर तो कुछ ना बोला, अलबत्ता जानवर ने जवाब देते हुए कहा, मैं जासूस हूँ। जानवर ने इंसानी ज़ुबान में बात की तो मुसाफिर और भी परेशान हो गए। कुछ मुसाफिर तो ये सोचकर नडाल हो गए कि वो ना हो ये शैतान है और हमारे सामने आ गया है। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके इस जानवर से वजह पूछी, तुम्हारी जासूसी का क्या मकसद है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ वो तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक रखता है और तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। मुसाफिरों की हैरत लम्हा लम्हा बढ़ती जा रही थी। अब न जाने वो क्या बला है जिसकी तरफ ले जाने वाला है। तमाम मुसाफिर चुपचाप खामोशी से उसके पीछे हो लिए। जानवर दरख्तों के दरमियान बने रास्तों से होता हुआ एक पुराने महल के सामने जा खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंद बाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। अजीबोगरीब जानवर ने फिर हरकत की और एक बड़े दरवाजे से गुजरते हुए मुसाफिरों को महल के अंदर ले गया। महल के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इससे पहले इतनी बड़ी कदोकामत और हैबत वाला आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो आदमी घुटनों तक लोहे में जकड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ जंजीरों से गर्दन के साथ बंधे हुए थे। उसने मुसाफिरों को देखते ही जोरदार झटका दिया, जंजीरों से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन मजबूत और ताकतवर जंजीरों ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी न होने दी। मुसाफिर हैरत में डूब गए। ये जजीरा उनके लिए इस कदर पुरस्कार था कि हर कदम पर उन्हें किसी न किसी परेशान कुन हैरतनाक मरहले से दो चार होना पड़ रहा था। एक मुसाफिर ने जंजीरों में जकड़े हुए इस बदसूरत और हैबतनाक आदमी से पूछा, कमबख्त तुम क्या चीज़ है? उसने जवाब दिया, मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तो तुम जान ही लोगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, कि हम अरब के लोग हैं, लहम और जजाम के कबीले से हमारा तल्लक है। हम सब समंदर में सफ़र कर रहे थे कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी कश्ती भंवर में फंस गई। समंदर में फंसे 3 दिन गुजर गए। फिर आकर एक रोज हम इस जजीरे पर उतर आए। मुसाफिर क्या खामोश होते ही जंजीरों में जकड़ा आदमी बोला, जरा मुझे नखलिस्तान के मुतल्लिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा कि उनके मुतल्लिक क्या जानना चाहते हैं? जंजीरों में जकड़े इंसान ने कहा, नखलिस्तान के मुतल्लिक मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खजूरों पर फल लगता है कि नहीं। उन्होंने कहा, हाँ फल लगता है। कैदी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, खबरदार, अनकरीब इस पर फल लगना बंद हो जाएगा। वो फिर मुसाफिरों से मुखातब होकर बोला, अच्छा कब्रिस्तान के दरियाओं के मुतल्लिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरिया के मुतल्लिक क्या पूछना चाहते हो? बोला, इसमें पानी है। मुसाफिरों ने कहा, हाँ इसमें पानी मौजूद है, तो फिर इसका पानी अनकरीब खत्म हो जाएगा। उसने आने वाले वक्त की खबर से आगाह किया। फिर बोला, मुझे जरा जर के चश्मे के मुतल्लिक तो कुछ बताओ। मुसाफिरों ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? कैदी ने कहा, यही कि चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर पानी है तो फिर वहाँ के लोग इस पानी से खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं। मुसाफिरों ने कहा, इसमें पानी है और इस पानी से वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। फिर कैदी ने पूछा, अच्छा ज़रा मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तो आगाह करो। मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने मक्का से अपनी दावत का आगाज़ किया। वो मक्का से निकलकर मदीना में मौजूद है।
कैदी ने पूछा, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े? मुसाफिरों ने बताया कि हाँ। फिर पूछा, अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? मुसाफिरों ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी अताअत भी कर ली, इनकी ताबेदारी भी कर ली, और अब वो खुद इनको इनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से पुकारा और जंजीरों को झटका दिया। मुसाफिरों को मुखातब करके बोला, अब मैं तुमको खुद के मुतल्लिक बताता हूँ। तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ कैद से छुटकारा मिलने वाला है। लगता है कि वो ज़माना करीब आ गया है जब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर इस जजीरे से निकलूंगा, 40 दिनों में सारी दुनिया घूमूंगा, सारी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। कोई बस्ती और गांव ऐसा ना होगा जहाँ से मेरा गुजर ना होगा। हाँ, मक्का और मदीना के शहरों में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, आड़ बन जाएंगे, इनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी गमनाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हज़रत तमय्यम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस पुरस्रार जज़ीरे पर दज्जाल से मिलने की दास्तान सुन रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठे बैठे लाठी उठाई और इसको जोर से मिंबर पर मारा। सहाबा कराम इस दिलचस्प दास्तान में खोए हुए थे। वो लाठी की आवाज़ पर मुतवज्जा हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैयबा यही है, तैयबा यही है, तैयबा यही है। तैयबा से मुराद मदीना मुनव्वरा है और दज्जाल इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता। क्या मैं तुम्हें पहले से ही इस दज्जाल के मुतल्लिक़ आगाह नहीं कर चुका? सहाबा कराम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल आप पहले ही इसके मुतल्लिक़ आगाह करते रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीमदारी ने जब ये बात मुझे बताई तो इस फितना दज्जाल ही का एक हिस्सा थी जिसके मुतल्लिक़ मैं तुम्हें आगाह करता रहता हूँ। और ये जान लो कि वो शाम या यमन के समंदर में नहीं है बल्कि वो मशरक़ की तरफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मशरक़ की तरफ किया, मशरक़ की तरफ बहरे हिंद आया और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कश्ती तूफ़ान में फंसकर जिस पुरस्कार जजीरे पर पहुंच गई थी वो इस बहरे हिंद में कहीं है, इस पुरस्कार जजीरे में जहाँ दज्जाल कैद है। इसके मुतल्लिक़ हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आप तक कोई नहीं पहुंच सका और ना ही किसी को इस पुरस्कार जजीरे के मुतल्लिक़ कोई खबर है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब के मुमताज़ आलम थे और इंजील पर पूरी पूरी दस्तरस रखते थे, लिखना पढ़ना जानते थे। ज़माना जाहिलियत में नेक फितरत गरीबों महताजों का सहारा थे। यहूद व नसार के मुमताज़ उलमा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार होता था। इब्ने हिजर रहमत अलैह ने तहज़ीबुल तहज़ीब में लिखा है कि वो किताब अहद कदीम और जदीद के मानने वालों में से थे। इस वजह से यहूद व नसार दोनों उनको अपने उलमा में शुमार करते थे। आप बहुत ही ज़हीन थे, जो कुछ पढ़ते अज़बर कर लिया करते थे। आपकी तबीयत में अनसो इनकसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। रयाकारी नमूदा नुमाई से सख्त नफरत थी। ज़ाहिर बातन शफाफ शौर और मामला फहम थे। मक्का मदीना के लोग तिजारत के सिलसिले में अक्सर मुल्क शाम जाते रहते थे। इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद का हाथ सुनकर उनके दिल और ज़मीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सदाकत की गवाही दी और वो आपकी जानब माइल हो गए। ताहम अरसे तक उन्हें आबाई वतन से बाहर निकलने का मौका न मिला। फिर 9 हिजरी में अपने भाई नईम के साथ मदीना तैयबा आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर मुशर्रफ बाइस्लाम हो गए। मुताख़िरुल इस्लाम होने के बावजूद उनका शुमार फ़ज़ला सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में होता। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने मदीना तैयबा में रहाइश इख्तियार कर ली। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चंद माह में मस्जिद नबवी तामीर होगी। इसकी तामीर में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस हिस्सा लिया। ये मस्जिद हर किस्म के तकल्लुफ़ात से खाली और इंतहाई सादगी का मुद्दा थी। कच्ची ईंटों और ना तराशीदा पत्थरों की दीवारों में खजूर के स्तून और खजूर के पत्तों का छप्पर और संगरेज़ों का फर्श था। लेकिन इसको जिन मुकद्दस हाथों ने तामीर किया, जिनके सजदों से यह मामूर भी इनकी अजमतों के सामने फल्कुल अखलाक की रुतबतें नईच पर थी। साला साल मस्जिद नबवी रोज़ अव्वल की सी सादगी पर कायम रही, यहाँ तक कि रात को रोशनी का भी कोई इत्माम नहीं था। सहाबा कराम चांद या सितारों की रोशनी में नमाज अदा करते, अलबत्ता कभी कभी सहाबा खजूर की शाखों में मुशल जलाकर ले आते थे। इब्ने कसीर ने लिखा है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुल्क शाम से मदीना तैयबा आते वक्त कुछ कंदीलें
اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی، ان کی روشنی مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ سرخ خوشبو صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں دی اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح انصاف سے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر دیا۔ یہ خوشبخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔